یہ خبر سننے کے بعد شمال میں جو راجپوتوں کا لشکر تھا وہ سراسیمہ ہو کے رہ گیا. جو سوئے ہوئے تھے انہیں جگا دیا گیا. پھر سب تیار اور مسلح ہو کر بڑی تیزی سے جنوب کی طرف بڑھے تاکہ مسلمانوں کو آگے بڑھنے سے روک دیا جائے. عین اسی لمحے مسلمانوں کا وہ لشکر جو پڑاؤ کے لیے مستعد تھا وہ بھی آندھی اور طوفان کی طرح حرکت میں آیا اور رسوں کی سیڑھیوں کو پھینکتے ہوئے وہ شمال کی طرف سے شہر کی فصیل پر چڑھ گئے اور اب انہوں نے ان راجپوتوں کی پشت کی طرف سے حملہ کر دیا جو شمال سے جنوب کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے تھے. اس طرح راجپوت دونوں طرف سے مسلمانوں کے سامنے پسپا ہونا شروع ہو گئے. راجپوتوں کا وہ لشکر جو ابھی تک شہر کے اندر محفوظ دستوں کے طور پر آرام کر رہا تھا اسے بھی خبر ہو گئی تھی کہ مسلمان فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. لہٰذا لشکر کا وہ حصہ بھی تیزی سے تیار ہو کر فصیل پر چڑھنا شروع ہو گیا تھا. لیکن ان راجپوتوں کی بدقسمتی کے ان کے اوپر چڑھنے تک مسلمانوں نے پہلے سے فصیل پر موجود راجپوتوں کی اکثریت کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور اب صورتحال یہ تھی کہ راجپوت مسلمانوں پر حملہ آور ہونے میں عجیب طرح کی دشواریاں محسوس کر رہے تھے. وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسی جگہ ملے جہاں سے وہ مسلمانوں کی پشت پر ضرب لگائیں لیکن ان کے لیے ایسا ممکن نہ ہوا اس لیے کہ جنوب کی طرف سے قطب الدین ایبک اور ایبا فصیل پر چڑھنے کے بعد اپنے اپنے حصے کے لشکر کو لے کر دائیں بائیں ہوتے ہوئے آگے بڑھنے لگے تھے. اس طرح ایک نیم دائرے کی صورت میں فصیل کے اوپر ان کا لشکر پھیل چکا تھا. دوسری طرف مسلمانوں کا وہ لشکر جو شمال سے اوپر چڑھایا تھا وہ بھی نیم دائرے کی صورت میں آگے بڑھ رہا تھا. اس طرح مسلمانوں پر کوئی کاری ضرب لگانے کے لیے راجپوتوں کو جگہ نہ ملی اور اسی کشمکش میں مسلمانوں نے بڑی تیزی سے ان کا قتل عام کرتے ہوئے ان کی تعداد کم کرنا شروع کر دی تھی. یہاں تک کہ اب مسلمانوں کے لشکر کے ایک حصے نے فصیل سے نیچے اتر کر بھی راجپوتوں کے ساتھ معرکہ آرائی شروع کر دی تھی. فصیل کے اوپر سارے راجپوتوں کا خاتمہ کرنے کے بعد قطب الدین ایبک اور ایبا اپنے پورے لشکر کے ساتھ فصیل سے نیچے اتر کر شہر میں داخل ہو گئے تھے. اب راجپوت ادھر ادھر بھاگتے ہوئے اپنا دفاع کرنے لگے تھے. اتنی دیر تک مشرق سے سورج بھی طلوع ہوا. دن کی روشنی میں قطب الدین ایبک اور ایبا نے کالنجر کے اندر مسلح راجپوتوں کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا اور اس طرح کالنجر شہر انہوں نے فتح کر کے اس پر قبضہ کر لیا تھا. شہر کے اندر جس قدر مسلح راجپوت تھے ان سب کا خاتمہ کر دیا گیا تھا. لہٰذا کالنجر شہر کے اندر اب کوئی ایسی قوت نہ تھی جو مسلمانوں کے لیے خطرے یا دشواری کا باعث بنتی. اس کے علاوہ کالنجر کے لوگوں کو جب خبر ہوئی کہ مسلح راجپوتوں کا مکمل طور پر صفایا کر دیا گیا ہے تب کالنجر کے لوگ گروہ در گروہ قطب الدین ایبک اور ایبا کی خدمت میں حاضر ہونے لگے اور اپنی اطاعت اور فرما برداری کا اظہار کرنے لگے. یہ صورتحال دیکھتے ہوئے قطب الدین ایبک نے شہر کے اندر مناد پھیلا دیے اور قطب الدین ایبک کے حکم پر وہ منادی کرتے ہوئے لوگوں کو مطیع اور فرما بردار رہنے کے لیے کہتے رہے. ساتھ ہی سارے شہر کے اندر انہوں نے لوگوں کو امان دینے کا بھی اعلان کر دیا تھا. اس طرح شہر کے لوگ مطمئن ہو گئے کہ ان پر حملہ آور ہو کر انہیں نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. لہٰذا وہ دن کے وقت اپنے روزمرہ کے کاموں میں لگ گئے. شہر کے اندر جو راجپوتوں کی لاشیں تھیں ان سے شہر کو مکمل طور پر صاف کر دیا گیا تھا تاکہ شہر کے اندر کوئی وبا نہ پھوٹ پڑے. کالنجر میں وہ راجپوت جو قتل ہونے سے بچ گئے تھے وہ اپنی جانیں بچا کر بدایوں کی طرف بھاگ گئے. تاہم مسلمانوں نے شہر کی مکمل صفائی کرنے کے بعد شہر کو اپنے قبضے میں لے لیا. قطب الدین ایبک نے شہر کے اندر نظم و نسق چلانے کے لیے اپنے لشکر کا ایک حصہ وہاں متعین کیا. اس کے بعد وہ باقی لشکر کو لے کر شہر سے باہر اپنے پڑاؤ کی طرف چلا گیا. شہر سے نکل کر ایبا جب اپنے خیمے میں داخل ہوا تو دنگ رہ گیا اس لیے کہ خیمے کی بہترین انداز میں صفائی کی گئی تھی اور جو مختصر سا سامان خیمے میں تھا اسے بڑے سلیقے اور قرینے سے رکھ دیا گیا تھا. فرش پر چٹائی بچھانے کے بعد ایبا کو جو بستر لگا کرتا تھا ایبا نے اسے غور سے دیکھا. اس میں بھی تبدیلی تھی. بستر کی جو چادر عام طور پر اس کے استعمال میں رہتی تھی وہ بدل دی گئی تھی اور بالکل نئی تھی. بستر کے اوپر کچھ نئی چادریں بھی پڑی ہوئی تھیں اور جہاں خیمے میں ایک کونے میں ایبا کے سردیوں میں استعمال کے لیے کمبل پڑے رہتے تھے وہ بھی وہاں نہیں تھے. ان کی جگہ وہاں نئے اور دبیز موٹے اونی کمبل پڑے ہوئے تھے. اور پھر حیرت کی بات یہ کہ ان کمبلوں کے قریب کمار دیوی سر جھکائے بیٹھی تھی. ایبا ابھی چونکہ خیمے کے دروازے پر ہی کھڑا تھا اور کمار دیوی نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا لہٰذا ایبا کچھ دیر تک اپنے خیمے کا جائزہ لیتا رہا. پھر جو ہی اس نے خیمے کے اندر قدم رکھا کمار دیوی چونک کر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی. ایبا خیمے کے وسط میں جا کر تھوڑی دیر تک کمار دیوی کو بڑے غور سے دیکھتا رہا. پھر کسی قدر سنجیدگی میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا, کمار دیوی جھوٹ نہ بولنا, میرے خیمے میں یہ تبدیلی کس نے کی ہے؟ کمار دیوی چند قدم آگے بڑھ کر ایبا کے قریب ہوئی. پھر کسی قدر بے تکلفانہ سے انداز میں وہ ایبا کو مخاطب کر کے کہنے لگی کہ مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے, یہ تبدیلی میں نے خود کی ہے اور اس میں اور کون تبدیلی کر سکتا ہے؟ میرے علاوہ کوئی تبدیلی کر کے تو دیکھے.
कुमार देवी के अल्फाज में ऐबा कुछ देर बड़ी गौर से उसकी तरफ देखता रहा, सोचता रहा, फिर पहले की निस्बत ज्यादा संजीदगी में उसे मुखातिब करके कहने लगा, देखो कुमार देवी, तुम एक बाइज्जत लड़की हो, एक अच्छे शरीफ बल्कि शाही खानदान से ताल्लुक रखती हो। तुम्हारा इस तरह मेरे खैमे में आ जाना अच्छी बात नहीं है। कुमार देवी, तुम लड़की हो और लड़कियों को बदनाम करने में लोग देर नहीं लगाते। ऐबा के खामोश होने पर पहले जैसी बेतकल्लुफी में कुमार देवी कहने लगी, किसके साथ बदनाम करेंगे लोग मुझे? आपके साथ? आपके साथ करते हैं तो भले करते रहें, और फिर बदनाम कौन करेगा? बदनाम करने वाले उस वक्त कहाँ थे जब मुझे उच्च शहर के नवाब से अगवा कर लिया गया था, उस वक्त जबकि मैं इंतहाई बेबसी की हालत में एक कैदी की हैसियत से जिंदगी बसर कर रही थी। उस वक्त जबकि मैं इंतहाई बेबसी की हालत में एक कैदी की हैसियत से जिंदगी बसर कर रही थी। ऐबा के अलावा कोई मेरे काम नहीं आया था, लिहाजा लोग मुझे आपके साथ बदनाम करना चाहते हैं तो कर लें। ऐबा ने फिर चंद लम्हे बड़ी बेबसी से उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, इसका मतलब है कि तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो? कुमार देवी ने ऐबा की आंखों में आंखें डालते हुए कहना शुरू किया, आपको कोई बदनाम करके तो देखे, अगर मैं कुमार देवी उसका हुलकूम न काट दूं तो कुमार देवी न कहना। ऐबा अजीब बेबसी में फंस गया था, सर पर हाथ फेरते हुए कहने लगा, ये तुम कसाबों वाली गुफ्तगू करना तर्क कर दो, अपने खैमे में जाकर आराम करो। देखो कुमार देवी, बुरा न मानना, तुमने हमारे लश्कर में शामिल होकर इंतहा दर्जे की गलती की है। यहाँ तुम्हें मसाइब और कठिनाइयां झेलने से क्या हासिल है, क्या फायदा है? तुम नहरवाला में राजमहल के अंदर अपने माता पिता, अपने भाई के पास रहती, वहीं तुम्हारा जहनी और कल्बी सुकून था। अब यहाँ लश्कर के साथ जगह जगह मारी मारी फिर रही हो। वहाँ तुम दबीज गद्दों वाली मसहरियों पर सोती थी, यहाँ तुम्हें जमीन पर सोना पड़ता है। क्या तुम इस फर्क को महसूस नहीं करती? कुमार देवी भी संजीदा हो गई, धीमे से लहजे में कहने लगी, मैं कोई फर्क महसूस नहीं करती। लश्कर में रहते हुए ना मुझे कोई तकलीफ है और ना ही मैं कोई कठिनाई झेल रही हूँ। मैं खुश हूँ इसलिए कि इस लश्कर के अंदर मेरी मंजिल है, इस लश्कर के अंदर मेरा आदर्श है, इस लश्कर के अंदर मेरा गौहर मकसूद है। फिर मैं कैसे इस लश्कर में ना रहूं? कैसे लश्कर को छोड़कर नहरवाला में अपने माता पिता के पास रहूं? अच्छा, अब तुम ऐसा करो, अपने खैमे में चली जाओ। देखो तुम्हारा यूं मेरे खैमे में आकर इस तरह बैठ जाना। ऐबा अपनी बात मुकम्मल न कर सका, इसलिए कि कुमार देवी फिर बोल उठी, इस खैमे में आने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, हत्ता कि आप भी नहीं रोक सकते। ना आप मुझे इस खैमे से जाने के लिए कह सकते हैं। आप एक मौके पर मुझसे कह चुके हैं कि आप मुझसे नफरत नहीं करते, और जिससे नफरत ना की जाए उसे इस तरह धुतकार कर खैमे से निकाला तो नहीं जा सकता। जवाब में ऐबा कुछ देर खामोश रहा। एक बार फिर उसने कमरे का जायजा लिया, फिर कहने लगा, अच्छा अब मतलब की तरफ आओ। ये जो मेरे बिस्तर की चादरें तब्दील की गई हैं, कंबल उठाकर यहाँ नए कंबल रख दिए गए हैं, और मेरे खैमे का दूसरा सामान भी तब्दील कर दिया गया है, ये किसने किया है और किस खुशी में किया है? कुमार देवी ने फिर पुरुम्मीद अंदाज में ऐबा की तरफ देखा, फिर कहने लगी, आपके अंदाजे में ऐसी हरकत कौन कर सकता है? ऐबा ने एक लंबा सांस लिया और कहने लगा, कुमार देवी, मैं जानता हूँ ये हरकत तुम्हारी है, लेकिन ये बताओ कि ये जो सारा सामान लाई हो, इस पर तुम्हारी कितनी रकम खर्च आई है, और ये तुम कहाँ से लेकर आई हो, और रकम तुमने कहाँ से ली है? ये सारी तफसील बताओ ताकि मैं तुम्हें इन सारी चीजों की अदायगी करूँ। ऐबा के इस इस्तफसार में कुमार देवी कहने लगी, जिस वक्त आप और भाई कुतुबुद्दीन ने शहर का नज़्म व नसक अपने हाथ में लिया तो लश्कर की कुछ औरतें कलंजर शहर के बाजार की तरफ गई थीं। मैं भी उनके साथ हो ली थी। ये चीज़ें मैं खुद लेकर आई हूँ। मेरे पास रकम थी, लिहाजा ना मैंने किसी से रकम ली है और ना ही मुझे ज़रूरत पेश आई है, और ना ही मैं आपसे रकम लूँगी। इस पर ऐबा मुड़ा, दरवाजे की तरफ बढ़ा और कहने लगा, अगर ये बात है तो इस खैमे में तुम रहोगी, मैं किसी दूसरे खैमे में रह लूँगा। ऐबा के इन अल्फाज के जवाब में कुमार देवी तड़प कर आगे बढ़ी। ऐबा का उसने बाजू पकड़ लिया और फिर उसे खींचती हुई खैमे के वस्त में ले आई थी। इस तरह उसके बाजू पकड़ने पर ऐबा परेशानी और हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। इस मौके पर कुमार देवी ने बड़ी मिठास, बड़े प्यार और शहद भरी आवाज में उसे मुखातिब किया कि मैंने जो आपका बाजू पकड़ा है तो आप मेरी तरफ इस तरह हैरत, परेशानी और फिक्रमंदी से क्यों देख रहे हैं? ये कोई पहला मौका तो नहीं है। चंद बरस पीछे जाइए, जब मैं और आप नहरवाला के राजमहल में रहा करते थे, तो क्या वहाँ आपने मेरा हाथ और मैंने आपका हाथ नहीं थामा था? और क्या वहाँ रहते हुए आप मेरा बाजू और मैं आपका बाजू नहीं पकड़ती रही थी? ऐबा ने अपना बाजू छुड़ा लिया, फिर तकलीफ दे एहसास में कुमार देवी की तरफ देखते हुए कहने लगा, कुमार देवी, वो और बात थी। उस वक्त मैं और तुम दोनों कच्ची उम्र में थे और फिर वो माहौल कुछ और था। अब तब्दीली आ गई है, इसलिए कि कुमार देवी ने फौरन ऐबा की बात काट दी। क्या तब्दीली आ गई है? क्या मुझे जंग लग गया है? क्या इससे पहले नहरवाला के राजमहल में प्रेम की अमृत फिजा में हम एक दूसरे को और एक दूसरे के बदन को छू नहीं चुके? क्या वहाँ प्रेम की उड़ती उमंगों में हम एक दूसरे के आज़ा का जमाल नहीं कर चुके? क्या खुशबू के सफर में हम एक दूसरे के बदन के लम्स से वाकिफ नहीं हैं? अगर मेरे सीने में आपके प्रेम के अलाव ना होते, आपकी प्रीत में रेजा रेजा ना हो गई होती, तो यूं अपने जीवन को जुनू खेज बनाकर लश्कर में धक्के ना खाती फिरती।
यहाँ तक कहने के बाद कुमार देवी खामोश हुई। फिर संजीदा और किसी कदर रूहान सी आवाज में वो कह रही थी, मैं जानती हूँ मैं इंतहा दर्जे की खूबसूरत हूँ, पुरकशिश भी हूँ, किसी धोखे और किसी फरेब में नहीं। और फिर मैंने शादी ही करनी होती तो मेरा पुरजमाल चेहरा, मेरे दमकते और महकते लब, मेरा उजला दिलकश बदन, मेरे कोमल आज़ा और जवारे और शहर खेज शगुफों जैसे मेरे खनकते नकरई कहकों को देखकर और सुनकर हर कोई मुझसे शादी करने की भीख मांगता। लेकिन मैं तो सिर्फ आपकी मोहब्बत की घनी छाँव के लुत्फ व लज्जत में बैठना चाहती हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहती। इतना कहने के बाद कुमार देवी बेचारी उदास हो गई थी। चंद कदम पीछे हटकर खड़ी हो गई। उसके इन अल्फाज के जवाब में ऐबा कुछ कहना ही चाहता था कि एक लश्करी खैमे के दरवाजे पर नमूदार हुआ और ऐबा को मुखातिब करके कहने लगा, अमीर, आपको सालारे आला ने बुलाया है। गजनी से सुल्तान के कुछ कासिद आए हैं। सुल्तान ने आपको लश्कर के एक हिस्से के साथ फौरन गजनी तलब किया है। ख्वारज़म के हालात कुछ खराब हो गए हैं, लिहाजा सुल्तान ने जो कासिद भेजे हैं वो सुल्तान का यही पैगाम लेकर आए हैं कि आप लश्कर के एक हिस्से के साथ गजनी पहुंचे। वो लश्करी जब खामोश हुआ तब कुछ सोचते हुए ऐबा कहने लगा, तुम चलो, मैं पीछे पीछे आता हूँ। वो लश्करी वहां से हट गया। फिर किसी कदर हमदर्दी में कुमार देवी को मुखातिब करते हुए ऐबा कहने लगा, कुमार देवी, देखो, अब तुम अपने खैमे में जाओ, तुम्हारे खाने का वक्त हो गया है। जाकर खाना खाओ और आराम करो, और मेरा गजनी से बुलावा आया है तो मुझे गजनी चले जाना है। इस मौके पर कुमार देवी ने घूरने के अंदाज में ऐबा की तरफ देखा। फिर कहने लगी, अपने मन में ये ख्याल न बिठा लीजिएगा कि आप मुझे यहाँ छोड़कर गजनी चले जाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं लश्कर में जंगों में हिस्सा लेने के लिए शामिल नहीं हुई। इस लश्कर में आप ही मेरा आदर्श और मेरी मंजिल है। अगर आपने गजनी का रुख करना है तो जो लश्कर आपके साथ जाएगा उस लश्कर में मैं भी गजनी जाऊंगी। ऐबा ने घूर कर उसकी तरफ देखा। फिर कहने लगा, तुम गजनी जाकर क्या करोगी? कुमार देवी ने भी अपनी बात पर जोर देते हुए पूछ लिया, और आप गजनी जाकर क्या करेंगे? मुझे तो सुल्तान ने बुलाया है। ऐबा ने गर्दन हिलाते हुए कहा। जवाब में उसके अंदाज में और उसी तरह गर्दन हिलाते हुए कुमार देवी कहने लगी, और मुझे भी सुल्तान ने बुलाया है। ये मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है और मैं उनकी खिदमत में हाजिर होकर उनके सामने आपका और अपना मामला पेश करूंगी। फिर देखती हूँ कैसे फैसला मेरे हक में नहीं होता। इसके साथ ही ऐबा खैमे से निकल गया और तेज तेज कदम उठाता हुआ कुतुबुद्दीन के खैमे की तरफ गया, जहाँ वो खैमे के दरवाजे पर जाकर रुका। तब उसने देखा कि अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक अकेला बैठा हुआ था। ऐबा को देखते ही वो खड़ा हो गया, हाथ के इशारे से अंदर बुलाया और सामने बैठने के लिए कहा। जो ही ऐबा खैमे में दाखिल हुआ, उसके पीछे ही पीछे कुमार देवी भी खैमे में दाखिल हो गई। उसके कदमों की आहट पाकर ऐबा ने जब मुड़कर देखा तब वहां कुमार देवी को देखकर हैरान और शशदर रह गया। कुमार देवी ने उससे बात नहीं की, सीधी कुतुबुद्दीन ऐबक की तरफ गई, करीब हुई, फिर कुतुबुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगी, मोहतरम भाई, मैंने सुना है कि इनको सुल्तान ने गजनी तलब कर लिया है। कुतुबुद्दीन मुस्कुराया और कहने लगा, मेरी बहन, तुमने ठीक सुना है। इससे आगे जो कुछ तुम कहना चाहती हो उसकी तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, वो मैं कह देता हूँ। मेरी बहन, जिस वक्त लश्कर के एक हिस्से के साथ ऐबा यहाँ से गजनी जाएगा तो तुम इसके साथ गजनी जाने वाले लश्कर में शामिल होगी। तुम्हें गजनी जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब बोलो, तुम क्या कहती हो? जवाब में कुमार देवी मुस्कुराई, फिर कहने लगी, अब मुझे भूख लगी है अमीर, मैं जाकर अपने खैमे में खाना खाती हूँ। इसके साथ ही कुमार देवी मुस्कुराते हुए मुड़ी और खैमे से निकल गई। कुमार देवी जब खैमे से निकल गई तब थोड़ी देर तक तो खैमे में खामोशी रही। फिर ऐबा को मुखातिब करते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक कह रहा था, ऐबा मेरे अजीज भाई, थोड़ी ही देर पहले सुल्तान की तरफ से कुछ कासिद आए हैं और वो ये पैगाम लेकर आए हैं कि सुल्तान ने तुम्हें गजनी तलब किया है। ख्वारज़म के हालात कुछ खराब हो गए हैं। इस बिना पर सुल्तान ख्वारज़म पर हमलावर होना चाहता है, लिहाजा तुम्हारी खिदमत सुल्तान ने वहां तलब कर ली है। मेरे भाई, हिंदुस्तान में हमने बड़ी बड़ी कुव्वतों को जेर कर लिया है। कलंजर के राजपूत भी जेर हो चुके हैं। अब राजपूतों का एक बड़ा गिरोह बदायूं में जमा हो चुका है। यहाँ से जो शिकस्त खुर्दा राजपूत भागे हैं वो भी उधर चले गए हैं। मेरे भाई, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि आज रात के पिछले पहर लश्कर यहाँ से कूच करेगा, बदायूं का रुख करेंगे। तुम बदायूं तक मेरे साथ रहोगे। बदायूं को फतह करने के बाद मैं शहर के इंतजामात संभालता रहूंगा और शहर के इंतजामात दुरुस्त करने के बाद मैं दिल्ली का रुख कर जाऊंगा। लेकिन शहर के फतह के फौरन बाद मेरे भाई, तुम लश्कर के एक हिस्से को लेकर गजनी की तरफ रवाना हो जाना। अब बोलो मेरे भाई, इस सिलसिले में तुम कोई तब्दीली करना चाहते हो? अमीर, मैंने क्या तब्दीली चाहनी है? बहरहाल बदायूं की मुहिम में मैं आपके साथ शामिल हूंगा, इसके बाद मैं गजनी चला जाऊंगा। ऐबा के खामोश होने पर कुतुबुद्दीन ऐबक फिर बोल उठा, सुल्तान के जो कासिद आए हैं उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया है कि वहाँ तुम्हारा मुस्तकिल क़याम नहीं होगा। ख्वारज़म की मुहिम को सर करने के बाद तुम फिर वापस हिंदुस्तान मेरे पास आओगे। और कासिदों ने यह भी इशारा कर दिया है कि ख्वारज़म की मुहिम सर करने के बाद लगता है सुल्तान खुद भी हिंदुस्तान का रुख करे। बस मेरे भाई, मैंने तुम्हें इसी मकसद के लिए बुलाया था।
अब खाना यही मंगवाते हैं, दोनों इकट्ठे बैठकर खाते हैं। इसके बाद जाकर तुम आराम करना, रात के पिछले पहर लश्कर यहाँ से कूच करेगा। इसके साथ ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसी को आवाज दी। थोड़ी देर के बाद एक सिपाही खेमे के दरवाजे पर नमूदार हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे खाना लाने के लिए कहा और वो तेजी से पीछे हट गया। ज्यादा देर न गुजरी थी कि दो नौजवान खेमे में दाखिल हुए। वो खाने के बर्तन उठाए हुए थे। खाने के बर्तन उन्होंने तरतीब के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा के सामने लगा दिए और वो दोनों बाहर निकल गए। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा दोनों खाना खाने लगे और उसी रात पिछले पहर लश्कर कालंजर से बदायूं की तरफ कूच कर गया था। बदायूं एक कदीम और पुराना शहर है। कहते हैं कि इसकी बुनियाद 905 ईस्वी में बुद्ध नाम के एक हिंदू राजा ने डाली थी। इसके बाद 1030 ईस्वी में बदायूं को सुल्तान महमूद गजनवी के भांजे मसूद सुल्तान गाजी ने फतह किया और अब 1197 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक इस शहर पर हमलावर होने के लिए पेशकदमी कर रहा था। इसके बाद भी ये शहर मुख्तलिफ हमलावरों का निशाना बनता रहा। 1215 ईस्वी में अल्तमश ने ताजुद्दीन यल्दूज को लाहौर के करीब शिकस्त दी और इसे गिरफ्तार करके बदायूं भेज दिया। खलीजियों के जमाने में बदायूं एक बहुत बड़ा अस्करी मस्कन करार दे दिया गया था। जलालुद्दीन खिलजी एक जर्रार लश्कर लेकर मलिक छज्जू की बगावत को फरू करने के लिए बदायूं पहुंचा था और इसके बाद 1385 ईस्वी में फिरोज तुगलक ने इर्द गिर्द के कबाइल की बगावत को फरू करके कबूर खान शेरवानी को बदायूं का हाकिम मुकर्रर किया था। बदायूं को शहनशाह अकबर के दौर में सूबे दिल्ली की एक सरकार बना दिया गया था और यहाँ चांदी के सिक्के ढालने के लिए एक दारुल ज़रब कायम किया गया था। 1571 में इस शहर में एक जबरदस्त आतिशज़दगी हुई जिसमें सारा शहर जलकर खाकस्तर हो गया और शहर की आबादी एक बहुत बड़ी तादाद भी जलकर हलाक हो गई। इसके बाद शहनशाह शाहजहां ने बदायूं और संभल को मिलाकर एक सरकार बना दी और इसका नाम कठेर रखा और बरेली को इनका सदर मकाम करार दिया। मुगलिया सल्तनत के जवाल के बाद बदायूं पर रोहेलों ने कब्जा कर लिया और 1778 ईस्वी में ये ऊद के नवाबों के कब्जे में आ गया। इसके बाद 1801 ईस्वी में अंग्रेज इस पर काबिज हो गए। बहरहाल कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा अपने लश्कर के साथ बड़ी बरकरफ्तारी के साथ बदायूं का रुख कर रहे थे। ये शहर दरियाए असवद के किनारे वाक़ है, उत्तर प्रदेश में आता है और दिल्ली से लगभग 27 मील जुनूब मगरिब में वाक़ है। यहाँ राजपूतों ने एक खासा बड़ा लश्कर जमा कर रखा था। इसके अलावा कालंजर में जिन राजपूतों को शिकस्त हुई थी और वो अपनी जान बचाकर भाग निकलने में कामयाब हुए थे, उन्होंने भी बदायूं का ही रुख कर लिया था, इसलिए कि अब उनके सामने बदायूं के अलावा कोई ऐसा हिसार न था जहां क़याम करके वो मुसलमानों का मुकाबला कर सकें। इसलिए कि उनके बड़े बड़े ठिकानों, उनकी बड़ी बड़ी पनागाहों को फतह करते हुए मुसलमान उन पर काबिज हो चुके थे। लिहाजा बदायूं में जो राजपूतों का लश्कर था वो बदायूं को अपनी आखिरी पनाह और अपनी आखिरी हिसार और अपना आखिरी गढ़ जानकर कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा के खिलाफ पूरी ताकत और कुव्वत से मुकाबला करते हुए अपने माजी की गुज़श्ता शिकस्तों और हजीमतों को एक शानदार कामयाबी में तब्दील करने का तहैया किए हुए थे। बदायूं में जो उस वक्त राजपूतों का लश्कर था, उन्होंने मुसलमानों का मुकाबला करने के लिए कालंजर वालों जैसा तरीक़ेकार नहीं अपनाया। इसके अलावा जो राजपूत अपनी जानें बचाकर कालंजर से बदायूं में दाखिल हुए थे, उन्होंने भी मशवरा दिया था कि शहर के अंदर महसूर रहकर हरगिज मुसलमानों का मुकाबला न किया जाए। उनका यह भी कहना था कि अगर शहर के अंदर महसूर रहकर मुकाबला किया गया तो मुसलमान दो हरबे इस्तेमाल करते हैं। हर सूरत में शहर को फतह कर लेंगे। पहला हरबा वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि किसी भी मौके पर फसील के मुहाफिजों को जरा सी लापरवाही से फायदा उठाते हुए वो रस्सों की सीढ़ियों के जरिए शहर की फसील पर चढ़ सकते हैं। जब वो ऐसा कर लेते हैं तो फिर उन्हें फसील से उतारना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। उन्होंने बदायूं में जो लश्कर था उसे यह भी मशवरा दिया कि अगर इस तरह मुसलमान शहर को फतह ना कर सके तो फिर वो दूसरा तरीका ये इस्तेमाल करते हैं कि मुहासरे में शिद्दत इख्तियार करते हैं, अपने पास वाफिर मिकदार में सामान रसद और दूसरा ज़रूरत का सामान रखते हैं और जिस शहर का मुहासरा करते हैं उसकी ऐसी नाकाबंदी करते हैं कि ना कोई बाहर जाने देते हैं ना अंदर। इस तरह शहर के लोग मुहासरे से तंग आकर खुद ही हथियार डालने पर मजबूर हो जाते हैं। इन दोनों सूरतों में शहर के अंदर जो लश्कर होता है उसका खूब कत्लेआम होता है और तकरीबन उसका खात्मा कर दिया जाता है। लिहाजा इन मशवरों पर अमल करते हुए राजपूतों के उस लश्कर ने यह फैसला किया कि अब मुसलमानों का लश्कर शहर के करीब आए तो राजपूत भी बदायूं शहर से बाहर निकलकर अपने लश्कर का पड़ाव करेंगे और खम ठोंक कर मुसलमानों के मुकाबले पर आएंगे। जो ही मुसलमान बदायूं के करीब आए उन पर हमला कर दिया जाए। इस तरह मुसलमानों के खिलाफ कामयाबी की उम्मीद है। अगर फिर भी नाकामी हुई तो फिर कम अज कम अपनी जानें बचाकर भागने का मौका तो मिलेगा, और अगर शहर के अंदर महसूर रहकर मुकाबला किया तो मुसलमान हो सकता है किसी को भागने न दें और सबका कत्लेआम कर दें।
یہ فیصلہ کرنے کے بعد راجپوت شہر سے نکلے اور شہر کے جنوب میں انہوں نے اپنے لشکر کا پڑاؤ کر لیا۔ بدایوں شہر کے اندر جس قدر سامان ان کی ضرورت کے لیے استعمال ہو سکتا تھا وہ سارا انہوں نے شہر سے باہر نکال لیا تھا۔